Hello students, welcomes you. This is our second lecture of class 9th, chapter number 8, motion. Today topic is rest and motion. In the previous topic, I was discuss about the branch of physics, and in mechanics also divided into three category. One is static, second one is kinematic, and third one is dynamic. Now today I will discuss about a mechanics topic, rest and motion. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द रेस्ट. व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास? शिथिर किसको बोलते हैं कि वो पार्ट हमारे पास क्या होगा? साइंस के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट कब बोल सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए डेफिनेशन. एन ऑब्जेक्ट इज said to be at rest position. An object is said to be at rest position if its position does not change with respect to surrounding and time. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं कि अपने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है. ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट पोजीशन पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम एंड सराउंडिंग. ओके, लेट्स एग्जांपल. ए बुक लेइंग ऑन टेबल. एक बुक है जो टेबल के ऊपर है. सेकेंड हम बोल सकते हैं ट्रीज आर एट रेस्ट पोजीशन. बिल्डिंग आल्सो एट रेस्ट पोजीशन. ओके, कि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये किस में रहते हैं? एट रेस्ट पोजीशन पे होते हैं. कि एक ऑब्जेक्ट अगर हम एक पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन एट स्टैंडिंग पोजीशन एट टाइम 8 AM एंड क्लॉक आर रनिंग एट 8 AM. And after 12 hours and after 1 year, 2 year, the object at same place. Object at the same place. There will be no change in position. तो that is known as, हम क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट पोजीशन पे रहेगा. तो उसके विद रिस्पेक्ट टू कि जो उसकी पोजीशन है वो कभी भी चेंज नहीं होती. ठीक है. सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं. सेकेंड हमारे पास है मोशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है डियर स्टूडेंट. इसी से ही चैप्टर कंटिन्यूस मोशन करता है क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या है? मोशन. इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं. तो इस चीज का ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. तो लेट्स, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion, said to be in motion if its position are changed with respect to surrounding and time. कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स रिलेटेड टू दैट. ठीक है. ए कार इज मूविंग. ए कार इज मूविंग ऑन रोड एट 8 AM in the morning and after 1 hour I see that car cover a distance of or at 9 AM. That is the new position of the car. That is the first position, that is the second position. Then the position are changes and time also changes. Okay. Another example where we see that ki rotation of earth about its axis, earth also in motion. Okay. In our solar system we also saw that sun is there, and after in the first orbit, third orbit, then earth is revolve around the sun. ठीक है.
तो मीन्स पोजिशन ऑफ द अर्थ आल्सो चेंजेस. अनदर एग्जाम्पल वी से दैट कि हेयर इज अर्थ and here is moon. So there also the position of the object are changes with respect to each other. A and B are changes. ठीक है. So these are the example related to motion. There are so many examples are there. A man is running, a man is walking. ठीक है. Birds are flying. So there are so many types of example related to motion. So we will discuss about the another parts of this. Now next part is rest and motion are both relative to each other. कि रेस्ट और मोशन है जो एक दूसरे के रिलेटिव हैं, कि इस प्रकार से हम किस प्रकार से एक दूसरे को शो कर सकते हैं कि बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सिचुएशन आर देयर कि वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन द सेम सिचुएशन ऑब्जेक्ट आर इन मोशन. इफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वी फाइंड तो वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर. Now let's see an example. In a road, a bus are moving. This is bus, or there are so many passengers inside the bus. Okay, social distancing also they are at the equal distances, and their equal gap are there. They also take a part of social distancing. Okay, the bus is moving. Bus is moving from our hometown to the other town is say दिल्ली. ठीक है, हिसार से कहाँ पे जा रही है बस? दिल्ली की तरफ मूवमेंट कर रही है. बस आर मूविंग फ्रॉम डी हिसार टू डी दिल्ली. ओके, बस इज मूविंग फ्रॉम डी हिसार टू DA Delhi. In that situation there are so many children, so many students inside the bus. Children are sitting, they are moving for a picnic. कहाँ पे जा रहे हैं? पिकनिक के लिए they are moving from Hisar to Delhi. In that situation we see that कि 1 student, 2 student, 3 student, 4 and 5 and the driver, they are sitting on their seat. They are sitting on their seat and they are find after a long journey on their same place. वो सभी कहाँ पे बैठे? अपनी ही पोजीशंस के ऊपर. सभी के सभी अपनी ही पोजीशंस के ऊपर बैठे थे. Now we will find that in this situation 1, 2, 3, 4, 5 and the driver. So in that situation bus is moving from Hisar to Delhi. Bus is moving from one station to another station. ठीक है, in this situation. So we see that कि there are students with one student with respect to their fellow students are at rest position. Student 1 students are at rest position with respect to their fellow passenger या फेलो स्टूडेंट जो इनके साथ में जो स्टूडेंट और अदर स्टूडेंट है उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या है? दे आर एट रेस्ट पोजिशन. बट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इफ देर आर सो मेनी ट्रीज आर देयर, buildings are seen in the surrounding, there are so many other vehicles are coming in opposite directions. तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, हमारे पास एक पोजीशन जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पोजीशन पे और दूसरी पोजीशन जिसके विद रिस्पेक्ट टू क्या है, तो स्टूडेंट आर
in motion with respect to surrounding, with respect to surrounding, their position are change, their position are change, so that we can say that in the same situation objects, students are at rest position or students are in motion. Now let's do one example more. One more example is there कि that is the sun, our solar system. We prepare first orbit, second orbit, in the third orbit we take the earth. This is earth. Okay, and let's do more orbit. There are another planets are there, they are moving. So planet first, second, third, fourth, fifth and sixth and so on, there are the other planets. तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, हमारे पास अर्थ रोटेट देयर ओन एक्सिस आल्सो, अर्थ आर मूविंग अराउंड द सन, बट देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स आर देयर, सो मेनी पर्सन आर देयर. इन दैट सिचुएशन कि पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट पोजिशन ऑन द अर्थ और आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू आवर सोलर सिस्टम. इन सेम सिचुएशन आई कैन से दैट कि आई एम एट रेस्ट पोजिशन, आई एम एट रेस्ट पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू आवर रूम, विद रिस्पेक्ट टू जो ये मेरा कमरा है इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं किस पोजिशन पे हूँ, एट रेस्ट पोजिशन पे. एंड आई एम आल्सो इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू आवर सोलर सिस्टम बिकॉज अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन ऑन देयर एक्सिस. अपनी एक्सिस के ऊपर क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है और अपनी ही जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ पे रोटेट करेगी और एक सर्कुलर ऑर्बिट के अराउंड जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है. तो वो दोनों सिचुएशंस के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि ये सेम पर्सन आर एट रेस्ट पोजीशन और ये सेम पर्सन आर इन मोशन. तो इट्स मीन रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे, वो रिलेटिव होंगे. नाउ दिस इज द सिचुएशन. तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट्स मीन दैट एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट बट इन अदर सिचुएशन द ऑब्जेक्ट बी इन मोशन. ये आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट ए सिचुएशन वेयर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड मोशन. इन दोनों सिचुएशंस के बारे में आप लोग अपने पेपर में एक राइट शॉर्ट नोट लिख सकते हो. Now let's do some more type of motion. सबसे पहले हम एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं. ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है. बहुत सिचुएशंस के अंदर ये पूछे जाने वाला वर्ड होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता क्या है. ठीक है, सो मेनी सिचुएशंस के अंदर ऐसी चीज़ें हमारे पास आती हैं. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होगा क्या हमारे पास. ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट which cover a large distance as compare to its size. ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होंगे जो अपने डिस्टेंस से, अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस जो कवर करते हैं. मतलब जो ह्यूमन बॉडी है हम उसको भी क्या कह सकते हैं, ह्यूमन बॉडी आल्सो ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, अर्थ आल्सो ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, प्लैनेट्स आल्सो ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. ठीक है, कार आल्सो ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ट्रेन आल्सो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, बस. ठीक है, एनिमल्स. तो दीज आर द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो
अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस जो कवर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। हम उनको बोलते हैं कि वो हमारे पास एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे दे सकते हो। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा तो आप लोग कवर भी कर सकते हो, इसी चीज को ही बहुत सिंपल तरीके से बना भी सकते हो। ठीक है, ये कर्सिव राइटिंग के अंदर हम ऐसा बनाना सीखते हैं क्लासेस के अंदर कि ये मैन है और मैन मूविंग फ्रॉम हिसार टू दिल्ली, हिसार टू दिल्ली, पद यात्रा पे चल पड़ा है, पैदल ही निकल लिया है। ठीक है, पद यात्रा पे चल पड़ा ये, और इसका जो बॉडी साइज है वो है 5 फीट एंड इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो जो बॉडी है वो क्या कहलाएगी, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। अनदर सिचुएशन, नाउ दिस इज सन, SUN सन, and our solar system, and this is earth, rotation of earth on their own axis. So it's mean the diameter of the earth, we write roughly here, the diameter of earth is 12800 kilometer, but earth rotation and cover a distance of, in one revolution around the sun, it is much greater than its size. So earth is also a point mass object. Okay, now bus, also a bus, also a point mass object. ठीक है, तो बस चल पड़ी है यहाँ से, बस इज मूविंग, और बस का कलर चेंज नहीं हुआ वैसे तो। ठीक है, हम यहाँ पे जस्ट आपको बता रहे हैं। तो बस इज मूविंग, मूविंग बस, then size of the bus is approximate 15 feet, we can say that, and it cover a large distance as comparison to its size, maybe 100 kilometer, 1000 kilometer, and much greater distance are covered by a object. तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, जो अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस जो कवर करते हैं, वो भी क्या होगा हमारे पास, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ओके, now the next situation after point mass object, if we want to find the position of the point mass object, अगर हमें किसी point mass object की position find out करनी हो तो हम कैसे find out करेंगे, किसके with respect to, तो उसको वर्ड नाम देते हैं हम frame of reference, frame of reference। तो एक सिंपल सी सिचुएशन मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम मैथमेटिकल मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में इस चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कि मान लो हमें कहीं पे जाना है, किसी शॉप के ऊपर जाना है। ठीक है, तो हमें किसी शॉप का एड्रेस नहीं पता होता है, तो हम वहां पे एक पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। किसको आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेशन को। मतलब नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि आपकी जो बुक शॉप है, दे आर लाई नियर ए टेम्पल, इट इज फेमस टेम्पल, तो हम उसको बोल सकते हैं कि जो हमने पॉइंट कंसीडर किया है टेम्पल, दैट इज ए पर्टिकुलर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वी फाइंड द एड्रेस ऑफ द शॉप। ओके, इन आवर अनदर एरिया वी वांट टू गो नियर ए शॉप टू द बस स्टैंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बस स्टैंड इज आवर ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू वी रीच द नियर बाई शॉप। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम किसी भी पार्टिकल्स की पोजीशन को बता सकते हैं, और उस पोजीशन के साथ में, मतलब डियर स्टूडेंट, जो पोजीशन होती है उसके साथ में क्लॉक भी अटैच होती है कि हम उसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बता सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सो मेनी थिंग्स वी फाइंड इन द आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ आई एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन। The frame of reference is a point of coordinate। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने क्या बोला है कि सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट हमारे पास है, एक्सिस अटैच टू एन ऑब्जर्वर, कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कोई ऑब्जर्वर अटैच होता है विद ए क्लॉक विद हिम, और साथ में क्या है उसके क्लॉक है। द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसकी पोजिशन को आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, लेट्स सी द सिचुएशन। देन द रोड साइड, जिसको हम बोल सकते हैं एन ऑब्जर्वर
at rest position and with a clock on your hand, एक क्लॉक उसके हाथ में है, and a person are moving on a straight road. Person is moving on a straight road. तो position of the object are change continuously, a person are moving. So this position is known as frame of reference. Here we see that कि at 8 a.m. after 5 minutes, after 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes and 25 minutes, the position of the object are continuously changes, and observer at rest position and continuously note the time and the position, first position, second position, third position, fourth position, fifth one and sixth one, and object is continuously in motion, observer at rest position. So it represent a frame of reference. That point is known as frame of reference. Now this situation is in single line. It also represented in the 3 coordinate. Let's see these 3 coordinates. They are mutually perpendicular axis. O is the origin, that one is x-axis, y-axis and the z-axis. Origin is the position of the observer, that is the position of the observer and a clock with him. उसके पास में क्या है, क्लॉक है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू वो किसी भी पार्टिकल्स की क्या बता सकते हैं, पोजीशन को बता सकता है. ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इस रूम की बात करता हूँ, तो रूम जो हमारे पास है वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म में है. तो एक पॉइंट इज देयर, तो वी फाइंड द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वन कॉर्नर ऑफ द रूम. तो सेम पॉइंट, here we consider a P point. So we draw the perpendicular from these axes. One is x-axis, y-axis and one is now z-axis. Just I represent this axis only to show that, otherwise this is 2-dimension picture on blackboard, 3rd dimension. ठीक है, तो ये पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. We draw the perpendicular from each axis. So here we get the coordinate x, y and z. तो P पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, P पॉइंट इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. पोजीशन फाइंड आउट कर ली, ऑब्जेक्ट मान लिया कि इस पोजीशन पे था एट P के ऊपर, आफ्टर सम टाइम पोजीशन एट पॉइंट Q, तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो अनदर सिचुएशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. x1 y1 देन x2 y2 एंड z2. द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो चेंज, पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी फाइंड द वेलोसिटी, वी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो दिस इज नोन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दीज आर 3 एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू वी फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन. तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा था रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. ठीक है, तो ये 5 टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताए हैं आज, आप इनको नोट करें, लिख के देखें, रिवाइज करें, एंड देन टू आस्क एनी टाइप ऑफ डाउट तो राइट ऑन कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.